Supply should be made in the course of business or for the furtherance of business. इसमें क्या होता है, अगर आपको एक्सपांड करना है, अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, या आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो, आप सीए का हेल्प ले रहे हो या किसी मैनेजर का, बैंकर का हेल्प ले रहे हो, ठीक है, आप उनसे एडवाइस ले रहे हो, तो एनी सप्लाई मेड फॉर पर्सनल कंजम्पशन और इन पर्सनल कैपेसिटी डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। पहले तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात, सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई बिटवीन both non-taxable parties is not leviable to GST. Supply could be made to a non-taxable person also. A taxable person is one who is registered or is liable to be registered under the GST. So person who is registered and is supplying the goods with consideration or without consideration, it will be called as supply. Okay. Even if you are supplying to a non-registered person, then also this concept of supply will be charged on it. Okay. Any supply, on that you have to pay the GST. And if the supply is made for personal consumption, that will not attract the GST. Next, what is composite supply? Composite supply means two or more taxable supplies, goods or services or both, or any combination, which are bundled in natural course and are supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, where one product is the principal supply. For example, when a consumer buys a television set, he also gets a warranty and maintenance contract with the TV. This supply is the composite supply. In this example, supply of TV is the main supply. Main supply is principal supply. And along with the TV, you are getting warranty card and you are getting 1 year maintenance services that are ancillary supporting services. Okay. So this is called as composite supply. Next is mixed supply. Mixed supply means two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. Example, a supply of package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks, and fruit juices, when supplied for a single price, ये सब एक ही बॉक्स में डाल दीजिए। कभी किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं फेस्टिवल्स पे, तो ये सारी चीजें मिक्स करके एक ही बॉक्स में आजकल डालते हैं ना, अच्छा दिखता है, ठीक है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। व्हेन ऑल दीज स्वीट्स, ड्रिंक्स, एरेटेड चॉकलेट्स, केक्स, केन्ड फूड्स, फ्रूट जूस, ये सब अगर मिक्स करके एक ही बॉक्स में जब पैक करते हैं तो उसका प्राइस, सिंगल प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं। ओके। किसी भी फेस्टिवल पे आप देखोगे आजकल मिक्स्ड सप्लाई हो रहा है मार्केट में। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। अलग अलग सेल कर सकते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड सप्लाई करते हैं, एक ही बॉक्स में वो पैकिंग आ जाती है एंड दीज आइटम्स आर सप्लाइड मिक्स्ड, ओके, नॉट सेपरेटली। सो उसको मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा, बट दीज गुड्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इन गुड्स का जो सप्लाई होता है वो एक दूसरे को डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा,
अभी सप्लाई की अगर बात करें, अभी नॉन टैक्सेबल पार्टीज इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अभी सपोज कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जीवन विकास चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गिविंग फ्री फूड टू आदिवासी चिल्ड्रन, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? वेदर इट इज अ सप्लाई between non-taxable parties, supply could be made to a non-taxable person also. Okay, Jeevan Vikas Kendra charitable organization is offering free food to poor Adivasi children. So it is not a furtherance of business. ये कोई business नहीं है, हम लोग पैसे नहीं ले रहे हैं, और ये किसी को हेल्प करने के लिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या ये सप्लाई के अंडर आएगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स। वी आर ऑफरिंग free food to poor Adivasi children, whether it is supply or not supply. Write in the chat box. Hello, am I audible to you all? Hello, whether it is a supply or not supply, not a supply. Very good. TYBMS roll number 12. What about others? Other students? अभी भी आप लोग नींद में हो? Write in the chat box whether it is a supply or not a supply. Next, Mr. Pradeep of Mumbai approaches his brother Arun. Mr. Pradeep of Mumbai approaches his brother Arun, who is CA, to advise him on income tax matter for his residential property at Pune. कुछ टैक्स मैटर है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड टैक्स मैटर है, वो अपने ब्रदर से हेल्प ले रहा है। तो क्या ये सप्लाई है? कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? फर्स्ट का एग्जांपल बताया मैंने, एनी सप्लाई मेड फॉर पर्सनल कंजम्पशन और इन पर्सनल कैपेसिटी। वन ब्रदर इज गिविंग हेल्प टू सेकेंड ब्रदर, ठीक है, दो भाइयों ने एक दूसरे को टैक्सेशन के मैटर्स में हेल्प किया, प्रॉपर्टी पे जो इनकम टैक्स लग रही थी, कैपिटल गेन टैक्स, उसमें उसको हेल्प किया, एडवाइस दिया। तो वेदर इट इज अ पर्सनल कैटेगरी, कम्स इन पर्सनल कैटेगरी। फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या उसके ब्रदर ने उसको कुछ चार्ज किया? नहीं ना। ठीक है, प्रदीप और अरुण ब्रदर्स हैं, प्रदीप ने अरुण से एडवाइस लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये पर्सनल हो गया। जब हम पर्सनल अपने भाई बहन को या अपने रिलेटिव्स को सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो जीएसटी के अंदर आएगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स वेदर इट इज सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। सबका आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबका आंसर आना चाहिए, वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट अ सप्लाई। अगर आप एडवाइस देते हो किसी को और उससे चार्जेस नहीं लेते हो, और किसी पर्सनल रिलेटिव को आपने सप्लाई किया है सर्विसेज या एडवाइस, इट इज नॉट अ सप्लाई। नाउ सपोज यू आर अ डायरेक्टर, अभी आपके क्लास में सपोज रोहन इज अ डायरेक्टर। हेलो रोहन, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? से yes in the chat box. Hello, are you listening? Rohan is a director of a company and the company is giving car to Mr. Rohan for personal use.
ठीक है, रोहन को कार मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वेदर इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स। कार किस लिए दिया है? कॉल मतलब जो भी कंपनी का काम है वो करने के लिए उसको कार दी है ना, पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया है। हेलो रोहन, रोल नंबर 4, आप लोग ऑन करके सिर्फ चले जाते हो। ओके, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? रोहन इज गेटिंग कार, ही इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, ही इज गेटिंग कार फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस का कार वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, लेकिन वो सप्लाई के अंदर कंसीडर होगा। ओके, जब अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है या सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आता है तो उसको टैक्स लगेगा। जो भी डेफिनेशन सप्लाई के अंदर आ जाएगा, सप्लाई के अंदर वर्ड के अंदर आ जाएगा, उसको जीएसटी पे करना है। ओके, नेक्स्ट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दिया, इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे डाल दिया, उसमें से मुझे जो भी मनी आ रहा है, क्या वो मुझे उस पर जीएसटी पे करना है? वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यस और नो? अगर गलत भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? सब लोग आंसर करो। TYBMS, आप लोग कभी भी डायरेक्ट मैसेज लिखो तो बाकी सब लोगों को मोटिवेशन होगा। रोल नंबर 11, डायरेक्ट मैसेज 12, डायरेक्ट मैसेज दिया है, आप उसको एवरीवन करके मैसेज डालो। मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। अभी महविश ने बोला यस, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स समझते हो? आपको पोजेशन दिया है लेकिन उसका ओनरशिप नहीं दिया है अभी तक, वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल टू गुड्स कभी मिलेगा आपको? जब पूरा पैसा, आप पूरा इंस्टॉलमेंट पे करोगे। सपोज आपने कार लिया 5 लाख रुपीज का, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे, आपको पोजेशन मिल गया, आपने 1 लाख रुपी पे किया, आपको पोजेशन मिल गया, बाकी के 4 lakhs आपको पे करोगे, तब आपको टाइटल टू गुड्स मिलेगा, टाइटल टू या ओनरशिप टू गुड्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सेल का मैंने आपको बताया, ट्रांसफर का क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर। अभी कार सेल किया हमने, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे, कार का पूरा पैसा बायर ने नहीं दिया है, क्या हमने पोजेशन दिया है उसको? एडवांस मनी दिया उसने। ओके, यानी कि यहाँ पे उसने डाउन पेमेंट किया और
उसने बोला कि बाकी के इंस्टॉलमेंट्स ही मैं पे कर पाऊंगा, लोन लिया है यानी। तो ट्रांसफर में क्या होता है, उसको पोजीशन मिल जाएगी लेकिन उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी। इवन इफ वी आर गिविंग पोजीशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पे हमने उसको गुड्स दे दिया है। नेक्स्ट, बार्टर। बार्टर में एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स दे रही है और दूसरी पार्टी भी उसके जगह पे सर्विसेज दे रही है उसको। तो उन दोनों की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन एक्सचेंज, उन दोनों की वैल्यू टैक्सेबल होगी बिकॉज इट कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। एक्सचेंज, कुछ चीजें एक्सचेंज की है हमने तो वो भी सप्लाई के अंदर कंसीडर होंगी। लाइसेंस, लाइसेंस अगर आपने दिया है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर सप्लाई के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट, लीज रेंटल, अगर आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दिया है या लीज पे कोई मशीन दी है तो उस वो भी कंसीडर होगी इसी के अंदर। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब कुछ आपने स्क्रैप, 5 lakhs की कार थी, इतनी जूनी हो चुकी थी कि 50,000 में हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो डिस्पोजल हो गया। ठीक है, स्क्रैप मटेरियल हमने सेल कर दिया, उसको बोलेंगे डिस्पोजल। 5 लाख की कार की वैल्यू अभी 50,000 भी नहीं रह चुकी है तो हमने उसको 50,000 में सेल कर दिया। कॉम्पोजिट सप्लाई में मैंने एग्जांपल दिया, टीवी सेट के साथ आपको एंसिलरी, एंसिलरी सप्लाई क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल सप्लाई, मेन सप्लाई टीवी है, टीवी के साथ में उसका वारंटी अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई इज टीवी एंड सेकेंडरी सप्लाई इज वारंटी ऑफ टीवी। अच्छा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, supply between non-taxable is not leviable to GST. Member of Parliament, remuneration received by member of लोक सभा, ठीक है, अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उन लोगों को जीएसटी नहीं लगती है। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, अभी जो जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं वो सारी चीजें देख लीजिए। अनब्रांडेड आटा, बेसन, मैदा, अनब्रांडेड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सिंपल प्लास्टिक बैग में जो मिलता है ना हमारे लोकल किराना स्टोर से, आटा, बेसन, मैदा, जिसपे कोई भी नाम नहीं लिखा होता है किसी कंपनी का। मिल्क, एग्स, कर्ड, फ्रेश वेजिटेबल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एक्सेट्रा, सर्विसेज बाय आरबीआई, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज बाय ईएसआईसी, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सर्विसेज बाय आईआरडीए, सेबी एंड देयरफॉर इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। जो भी सप्लाई इन ऑर्गेनाइजेशन से होती है तो वो जीएसटी के अंदर वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। ठीक है। हमने क्या क्या सीखा आज, मिक्स्ड सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, और उसके अलावा हमने एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, जो भी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उनको एग्जेम्प्ट किया है। ठीक है, ये तो डेली चीजें जो हम लोग यूज करते हैं किचन में।
So supply includes what? Supply includes sale, transfer, barter, exchange, license, rental, disposal, all of these. ठीक है, हमने आज सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सेल, ट्रांसफर, सेल एंड ट्रांसफर, बार्टर एंड एक्सचेंज, लाइसेंस एंड रेंटल, उसके बाद डिस्पोजल। अगर हमने कोई मशीन बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो उसको स्क्रैप में सेल करते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं कंपनी से। उसके बहुत कम अमाउंट मिलता है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, मशीन। अगर आप एक ही पैकेट के अंदर अलग अलग गुड्स ले रहे हो, मैंने आपको बताया जैसे फेस्टिवल्स पे आजकल मिक्स सप्लाई हो रहा है, बहुत सारे आइटम्स एक ही पैकेट के अंदर आपको मिलते हैं, एंड दे चार्ज यू अ सिंगल प्राइस व्हेन दे सप्लाई द गुड्स, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड सप्लाई। आपने देखा होगा बहुत सारे आइटम्स एक ही बॉक्स के अंदर, और अच्छा दिखता है उसमें फेस्टिवल्स में देने के लिए, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट आइटम। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, इसके अंदर जितने भी इसेंशियल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, और मैंने आपको बताया सेबी और आरबीआई जो भी सर्विसेज देती है, वो सब इसके अंदर माफ है, जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने आपको समझाया मिक्स्ड सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई। ये आप एक बार वापस से वीडियो देख लेना।